Are you able to see the mental ability, the slide or PPT? Yes, sir. Okay. So basically, mental ability divided certain categories or topics. You can call these topics. Okay. First of all, series completion problems, or inserting or missing characters, coding decoding problems, alphabet test or number ranking, mathematical operations, puzzle test, seating arrangement, blood relations, direction sense test, analogy, classifications, and the logical Venn diagram, calendar type problems, cube type problems, dice type problems, figure partitions, dot situations, average time speed and distance, time and work equation. So basically, these are total 25, more than 25 plus categories. ओके बेसिकली एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स रही होगी जो may be based on any one of these topics or more than one or these topics. Okay, मे भी किसी एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और मिक्सिंग बाय वन और मैनी कॉन्सेप्ट्स. ओके, लाइक मिरर इमेज आ जाता है, उसमें कुछ फिगर पार्टीशन वाला प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, डॉट सिचुएशन वाला प्रॉब्लम हो जाएगा. मिरर इमेज इस तरीके से कोई प्रॉब्लम दी होगी. ओके, सपोज इसका मिरर इमेज कैसा होगा, तो इसका मिरर इमेज इस टाइप का होगा, तो ये इस टाइप का मिरर इमेज होगा. इसमें कोई डॉट सिचुएशन दी जाएगी इस तरीके से, तो इस डॉट सिचुएशन बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वाला डॉट किस साइड पे होगा. ओके, एंड बेसिक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस. सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स बेस्ड ऑन. इससे भी और भी टॉपिक्स होते हैं जो आपको रिक्वायर नहीं है अभी. मे बी आपका जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी एग्जाम्स एंड अदर कंपटीशन, कैट हो गया, अदर एग्जाम्स में होते हैं, उनमें जरूरत पड़ती है. ओके, अभी इसमें जरूरत नहीं है आपके लेवल पे. So today we will start the series completion problems. Okay, the series completion problem deal with numbers, alphabets, or both together. Okay, are you able to understand? The series completion problems deals or based on numbers, alphabets, or both together. Okay, for solving any types of mental ability problems, you have to find the patterns. If you are able to find patterns of any problems, then आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया. समझ रहे हो? अगर आपने पैटर्न्स निकाल लिया, इफ यू आर एबल टू फाइंड पैटर्न्स ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स. ओके, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो उसका. Then in series completion problems or inserting missing character, there are two types of question asked in exams. Number one, find the missing terms, or number second, the wrong terms. Suppose any series given 21, 25, 29, then what is the next numbers of that series? So you can see the difference between first and two letters. First and two numbers is plus 4, and second number's difference is also plus 4. Then this must be plus 4, or this should be plus 4. 3. So the answer should be 33. Okay, so इस तरीके से प्रॉब्लम आता है मिसिंग नंबर्स. Then if wrong terms, if series given like 25, 27, 29, 32, 33, इस तरीके से प्रॉब्लम दी है, तो आप लोग इसमें देख सकते हो. फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लस 2, डिफरेंट दिस टू आल्सो प्लस 2, 32, sir. डिफरेंट. So the wrong numbers is 32. Okay, so basically अभी हम लोग इस पे स्टडी करेंगे. Okay, so there are certain types of series or certain type of pattern which we can find. मतलब आप देख के बता सकते हो. Okay, कि अगर इस तरीके से पैटर्न होगा तो some patterns like that is called arithmetics progressions. Okay, you know the AP series or AP GP HP series.
Anyone knows the AP, GP, HP? Sir, AP AP है. called Sir, AP only called AP. AP. AP called arithmetic progressions. Okay. GP called geometric progression. HP called harmonic progression. ये आपके भी सिलेबस में नहीं है, बट जो HP होती है, सपोज इफ मैं एग्जांपल दूं HP का, if A, B, C are in HP, okay, if मैं बोलूं A, B, C are in HP, then they should be 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C should be in AP. समझ रहे हो? अगर कोई भी नंबर्स दिया है वो HP में है तो उसका अपोजिट नंबर HP में AP में होना जरूरी है. ओके, सो वी कैन कॉल द HP इज द अपोजिट ऑफ AP, बट ये आपको डिटेल्स में आप बाद में पढ़ोगे. ओके, अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि some important patterns like A plus minus D, A plus minus 2D, A plus minus 3D, that is called arithmetic progression, that is also called addition or subtraction. Pattern. ओके, समझ रहे हो? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पैटर्न्स. लाइक इफ मैं बोलूं इसमें कि a plus d, a plus 2d, a plus 3d, that is called addition pattern. Okay, if I called a minus d, a minus 2d, a minus 3d, that is called subtraction. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So okay, so come to the next series of that, that is the geometric progression. Geometric progression in this series, here is the A is a term or numbers, that is called first numbers. D is the common difference. You know the common difference? Common difference. Similarly, in this GP, A is called the numbers and K is called common multiplier. Common multiplier. Okay. So that series is AK square, AKQ. That means इसमें एक कोई कॉमन टर्म होगा जिससे मल्टीप्लाइड होगा. इसमें क्या होगा, कोई कॉमन टर्म है दैट इज D, इसमें प्लस और माइनस होता है, इसमें वो मल्टीप्लाइड होगा. सिमिलरली जो थर्ड सीरीज है इसमें वो डिवाइड होगा. तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर सीरीज और मल्टीप्लायर पैटर्न प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिवाइडिंग पैटर्न. मल्टीप्लायर और डिवाइडिंग पैटर्न, इन दोनों सीरीज को हम मल्टीप्लायर और डिवाइडिंग पैटर्न बोल सकते हैं. ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे इसमें मैंने वही कैसे मल्टीप्लाइड किया, इसमें कैसे मल्टीप्लाइड किया, इसमें कैसे डिवाइड किया. एनी डाउट्स हियर? No, sir. तो फोटो भाई लगा. In the next series, the series of prime numbers, you know the prime numbers, so that is सबको समझ में आ रहा होगा. The series of prime numbers 2, 3, 5, 7, 11. It may be a square of prime numbers, it may be the cube of prime numbers, कुछ भी हो सकता है. तो series of prime numbers also a patterns of that series completion problems. किसी टीम का त्रास गया था लाइक. Okay, जी बैटरी कमी यार पे बाहर चल लावा. so today we will start the series completion problem. Example. So solve the first example of that series, that is 21, 24, 27, 30. Then what will be the next number of that series? 33. 33. Everyone is clear? Yes, in sir. this term, that is called addition series.
here a is equal to 21 and d is equal to 24 minus 21, that is 3. So the that is a plus d, that is a plus 2d, that is a plus 3d, that should be a plus 4d. So the answer should be 21 plus 4 into 3, 21 plus 12, that should be, that will be 33. Okay, Yes, sir. so solve the next example. 9, 18, 36. Find the missing number of that series. 72. 72. Okay, everyone is clear? Okay, next example. 1, 4, 12, 30. Find the next number of that series. If you are able to find that, you can solve also. That is example, next example. 2, 6, 26 question mark. You can also solve this example. Let me call example, that is example number 1, 2, 3, 4, 5. Example number 5 is 3, 9, 36, 180. Next number. Also solve the example number 6, 8, 12, 21, 46, 95 question mark. Anyone solve question number 3, 4, 5, 6? Any questions? Sir, fourth and fifth. Fourth and fifth. The answer is Fourth का 42. सर fourth फिफ्थ का का 1080. 1080. 1080. Fifth का, fourth का 42. 42. And next question number 3 and question number 6. Let me clear solve the question number 4. The difference between these two is plus 4, and the difference between these two is how much? Tell me, beta. 8. 8 or plus 8. Okay, kindly write the plus or minus in front of the numbers so you can clearly see the difference is in minus or plus. मतलब आपको देखना चाहिए clearly कि difference minus में है या plus में है. Okay. Yes, sir. तो ये आपको बहुत जरूरी है, आपको नंबर से आगे प्लस लिखना है, माइनस भी लिखना है. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And the difference between these two numbers is Plus 12. plus 12. So you are seeing the patterns following this number. कौन सा patterns follow हो रहा है यहाँ पे? Multiples of 4. 8, 12. Then the next number Multiples of should be 4. next number should be 16. So the answer 26 plus 16, that will be 42. Okay. Everyone is clear? Okay. In the question number 5, each term is multiplied by 3, 4 and 5. Okay. Therefore, the next term should be multiplied by 6. Let me get. That is multiplied by 3. In this term multiplied by 4, 4. In this term multiplied by 5. 5. So
That should 6. be 180 into 6. So the answer will be 1080. Okay, everyone is clear? Let me call by your names. आदित्य, क्लियर हुआ आपको? दिया कोटक, जीवन, पूर्वा, सामान्य, Yes, sir. संस्कार, तान्या, Yes, sir. सबको क्लियर हुआ ना? गौतम, Yes, sir. वेरी गुड. ओके जीवन, ओके क्रिस. सो काइंडली रीनेम योरसेल्फ. आप अपना नाम चेंज कर सकते हो. ओके, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो. So in question number 6, you are seeing the difference between, let me solve. Okay, the difference between these two numbers is how much? How much? +4. Plus 4. 4. And the next number, and the next numbers, +9. 10. 9. 9. 9. okay, no, 1 second beta. The difference between 12 and 21 is +9. 9. plus 9. And the difference between Sir, these two they are numbers is squares. plus 25. 25. And the difference between these two numbers is 49. So you are seeing the difference of these numbers is 2 square and the 3 square and the 5 square. So you are seeing that this is the Prime series number of squares. square Prime of number prime square. numbers. Square of prime numbers. Okay. So the next number should be the next prime number, that is 7 square. Next prime number is 11 square. So the next number is 95 plus 11 square, that is 216. Any doubts? No, sir. Very good. Ishan Gaikwad has some problems in joining. Okay. So let me solve the question number 3. Okay. The difference, each term, okay, each term is equal to the previous term multiplied by 2, 4 and 6. Okay, and so on. अब किसी ने सॉल्व किया बेटा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने सॉल्व किया है? Sir, answer is 58. Okay, so once 58. again, 58, 68, 58 or Sir, 68? 60, sir. 60. Okay, so जीवन have some problems क्योंकि जीवन ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. Let me explain जीवन. हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम्स. ओके, सो सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम में क्या होता है? कितना लोग लेट ज्वाइन किए? कितना लोग लेट ज्वाइन किए जिसको आइडिया नहीं है? मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूं. ओके, आप लोग देख लीजिए जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं. अभी मैंने स्टार्ट किया है सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम्स. ओके, इसमें बेसिकली क्या है, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं. ओके क्रिस, सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम में सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम्स, कोडिंग डिकोडिंग, इन जो मेनली टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं आपके. ओके, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. हम लोग डिफरेंट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे. ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम.
सो सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, अपने जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 इन अल्फाबेट है ABCD, इन नंबर्स से बेस्ड सीरीज होती है। ओके, सो अल्फाबेट्स ABCD या मे बी वो नंबर्स 1 2 3 में होगा या 21 25 26 समथिंग कोई सीरीज होगा, उस पे कोई क्वेश्चन होगा या कोई अल्फाबेट होगा आपका। ओके, ABCD EFG जैसे कोई अल्फाबेट में कोई सीरीज दी होगी, आपको उस चीज में निकालना पड़ेगा कि नेक्स्ट टर्म कौन सा है, या कोई सीरीज दी होगी उसमें से कोई रॉन्ग टर्म दिया होगा, वो रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, जो सीरीज हो सकती है, सीरीज मिक्सिंग ऑफ बोथ अल्फाबेट और नंबर से दोनों का मिक्स हो सकता है, मे बी अलग अलग हो सकता है, नंबर्स और अल्फाबेट अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है बेटा, हमको सबसे पहले हमको पैटर्न देखना है कि कोई भी सीरीज होती है, हमको सीरीज में स्टार्टिंग के 2 या 3 टर्म दिए रहते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट 2 3 टर्म्स गिवन रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट 2 3 टर्म से हमको क्या है, हमको पैटर्न फाइंड करना होता है। इफ वी आर एबल टू फाइंड द पैटर्न यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर हम पैटर्न फाइंड कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन लगाए और आप सॉल्व करने किसी एग्जाम का सीट बैठ गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, so basically the question type of question asked in examination, that is the missing term or finding the wrong term. Okay, so we are discussing here the missing term and these type of 2 problems हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ the missing term of any series. Okay, here are some patterns, ये कुछ पैटर्न है, A plus D, A plus 2D, इस तरीके से कोई पैटर्न है। सपोज कोई टिपिकल डिफरेंस होगा, मतलब एक फिक्स्ड डिफरेंस होगा किसी सीरीज में, वो या तो इंक्रीज हो रही होगी उसी डिफरेंस से या डिक्रीज हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई एक मल्टीप्लायर होगा, फिक्स मल्टीप्लायर नंबर होगा, उस नंबर से पर्टिकुलर सीरीज में मल्टीप्लाइड होता जा रहा होगा हर टर्म में, पर्टिकुलर टर्म में, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। या डिवाइड भी हो सकता है उसमें, तो वो डिविजिबल सीरीज हो गया। ओके, अभी हम लोग इतना ही डिस्कस किए हैं, इसके बाद मैंने एग्जाम्पल देना शुरू किया आप लोगों को। ओके, तो अभी तक इतना एग्जाम्पल हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना। ओके क्रिस, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन नंबर 1 4 12 30, द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि इफ आई कैन मल्टीप्लाइड 1 into 2 and plus 2, दैट शुड बी 4 होगा यहाँ पे। If I can multiply 4 into 2 plus 4, that's 12. 12. Okay, 12. Okay, where should be जीवन एक्चुअली आपको प्रॉब्लम्स क्या है, आप बोल के बताओ। सॉरी क्रिस, हेलो क्रिस, आपको व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करना है, यस सर। कहाँ सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? Where to solve this question? एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपके कोई कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। ओके, लाइक NTSC एग्जाम, एवरीवन नोज द NTSC एग्जाम, सबको पता है NTSC? Yes, sir. कौन कौन नहीं जानते हैं NTSC, कौन कौन नहीं जानता, रेज योर हैंड। और सर इसे मेरे और एक को, मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेटा। वेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब देखो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आपके माइंड में आकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, कहाँ सॉल्व करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको कोई एग्जाम में आया आपको दिया रहेगा। आपको ये दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये प्रोसेस आपको दिमाग में सॉल्व। सो फर्स्ट अगर मैं 1 में मल्टीप्लाइड करूं 2 का n plus 2 करूं, दैट इज इक्वल टू 4। देखो, लेट मी क्लियर स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके कोई क्वेश्चन दिया एग्जाम में, ओके,
कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया, आपके दिमाग में जो पैटर्न आता है, फर्स्ट जो पैटर्न स्ट्राइक करता है, लेट देम सॉल्व बाय दैट पैटर्न। ओके, आप कुछ यहाँ वहाँ मत भटकिए, उसी पैटर्न से सॉल्व करिए। कोई भी पैटर्न गलत नहीं होगा, ना गलत होने वाला है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस सीरीज के टर्म है दैट इज फॉलो हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। ओके, सो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पैटर्न से कि 1 into 2 plus 2 that is equal to 4, 4 into 2 plus 4 that is equal to 12, and 12 into 2 plus Plus 8. 6 6. that is equal to 30. 30. 30। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म विल बी 30 into 2 plus 8 that is equal to 60। 68. ओके, तो इस पैटर्न से आंसर 68 आ रहा है। ओके, एवरीवन इज क्लियर, आंसर आ गया। सर और एक पैटर्न है वो डिफरेंस का। सर और एक पैटर्न है, हाँ बताओ कौन सा पैटर्न है। 1 और 4 में 3 डिफरेंस है, हाँ यस Yes. सर, और 4 और 12 में 8 का डिफरेंस है। और 12 और 30 में 18 का, 3 और Yes. 8 में 5 का डिफरेंस है, और 8 और The 18 difference में between 10 का is डिफरेंस है। 3। The difference between is 8। The difference between is 18। 18 So इसमें इसमें 5 का 5 का डिफरेंस है, डिफरेंस है, इसमें 10 का में डिफरेंस है। 10 का, So नेक्स्ट इसमें 20 का 15 होना डिफरेंस चाहिए होगा। सर। 20 20 बेटा, सर इसमें 15 का ही 20 का होना चाहिए, डिफरेंस हो। 15 का। अभी देखो हम लोग देखो, फर्स्ट अगर क्लियर करना है कोई एग्जाम, अगर कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा तो वो पैटर्न मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिपीट होना जरूरी है। 2 to 3 टाइम्स रिपीट होना जरूरी है। अगर वो पैटर्न 2 to 3 टाइम्स रिपीट नहीं होता है देन हम उसको पैटर्न नहीं बोलेंगे। ओके, अभी हमने बोला कि यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है 3, 8 and 18, 3, 8 and 18। Okay, the difference between 3 and 8 is 5, and the difference between 8 and 18 is 10। So we cannot say the difference between the next term is 15 or 20 because 5 और 10 में 5 का difference है। Maybe that is double हो इसका, maybe difference 5 हो। समझ रहे हो ना? Maybe the difference इसमें जो 5 into 2 that is 10 बोल दिया, maybe the difference is 5 plus 5 हो। सो जब नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस 10 plus 5 हो सकता है, दैट इज 15 भी हो सकता है, एंड 10 into 2 दैट इज 20 भी हो सकता है। आप यू कैन नॉट से, अगर आपको एक पैटर्न और पता होता यहाँ पे, सो यू कैन फाइंड द पैटर्न। अगर हम 5 पता लग गया, 10 पता लग गया, नेक्स्ट हमको 15 एंड 20 पता होता तो हम जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड कर सकते थे। क्लियर? एनी डाउट्स? No, sir. Okay, so the correct answer should be 68। ओके, आप इससे निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहेगा ABCD। अगर एग्जाम में 68 दिया है और इस पैटर्न से आपका 63 आंसर आ रहा है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी ज्यादा सही होने की वो 68 होगी, 63 नहीं होगी, क्योंकि इसमें पैटर्न करेक्टली फॉलो नहीं हो रहा। क्लियर? एनी डाउट्स? No, sir. Okay, so the next question 5, 6, 7, question number 7, that is 4, 7, 3, 6, 2, 5 and question mark। Find the missing number, solve that question। In question number 8, 14, 15, Seventh answer 1. 16, 9, 18, 4, 21। Seventh answer 1। Okay, very good, Gautam। Thank you, sir. In the question number 8,
plus 3 minus 4 plus 3 -3, sir. -3. Okay. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूं, आप लोग सॉल्व करोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें -3 है, इसमें 1 है। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, इन दिस टाइप सम ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए एग्जाम में, उसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज दिया रहेगा आपके एग्जाम में। ओके क्लियर? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज, लाइक देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, द फर्स्ट सीरीज ऑफ दैट इज 4 3 2 and question mark, 4 3 2 and question mark, and then the second series 7 7 6 5, 7 6 and 5. so the first series में क्या डिफरेंस है बेटा? कॉमन डिफरेंस इज 1. okay, so the next term is answer should be 1. okay, minus 2 minus 3 okay. minus So 5 in the next series, the 1 first series 14 12 2 9 4 and question mark. Okay, and the next series is 15 16 18 21. Okay, so you can see the in the first series the difference between these two terms is -2 and the difference between these two terms is -3, and the difference between these two terms is -5. so the difference following the difference is the minus of the prime number. Okay, so जो difference आ रहा, that is difference minus of the prime number, or you can call the minus of odd number. So the next term should be the difference between -7. So 4 minus 7, that is equal to -3. So the answer should be -3. Any doubts in the question number 8? No, sir. Okay, very good. Now solve the थोड़ा सा tough question होगा, उसको आप लोग solve करो. Okay, the series of 4 18 4 18 question mark 100 118 294 4 8. Okay, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो इस प्रॉब्लम को, आपको एक चॉकलेट फ्री हो, डेयरी मिल्क की चॉकलेट दूंगा मैं आप लोगों को. ओके, टफ क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आपसे आपके लेवल से थोड़ा हार्ड है. विदाउट एनी हेल्प, आप किसी बुक से नहीं देखोगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सर सेकंड वन का आंसर 185 आता है क्या? नहीं बेटा 185 नहीं आता। ऑप्शन देता हूँ मैं दोनों में। 182 सॉरी 182। यस 182 द राइट आंसर। ऑप्शन देता हूँ मैं इसमें, आप लोग ऑप्शन दे। 196 बी 182 सी 199 डी 204। यस गौतम आंसर सही है। इसका ऑप्शन लिख लीजिए ए का फर्स्ट ऑप्शन है 48 बी 50 सी 58 डी 50। सर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए आता है। फर्स्ट ऑप्शन ए कैसे निकाला बेटा? सर टू मतलब क्यूब माइनस एक क्यूब माइनस मतलब एक का क्यूब और एक का स्क्वायर माइनस करने का। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी को डाउट है मैं एक्सप्लेन करूं? ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके फर्स्ट बेटा लेट एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर। ओके 4 18 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 448। ओके क्रिस यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट फोर देखो फर्स्ट फोर को देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? दैट इज 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 8 minus 4, that is equal to 4. Any doubts here? In 18, that is 3 cube minus 3 square, that is 27 minus 9, that is 18. Any doubts here? इसको लिख सकता हूँ मैं। ओके अब 100 की टाइम आता है। 100 को मैं लिख सकता हूँ 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 125 minus 25, that is 100. 180 को लिख सकता हूँ मैं 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज 216 minus 36, that is 180. Similarly 7 क्यूब minus 7 स्क्वायर, यस बेटा 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 343 512 minus 64 49, that is equal to 294, that is equal to 448. So यहाँ पे देखिए सीरीज 2 क्यूब 3 क्यूब, तो that should be the 4 cube minus 4 square. So the answer will be 64 minus 16, that is equal to 48.
So the answer is 48. First remember beta, आप you have to learn square of 1 to 30 and cube of 1 to 20. आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा 6 क्यूब का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो आप तो इसको ही करते रह जाते, 10 मिनट लग जाते। और क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है। ओके, तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है एंड 1 से 20 तक का क्यूब याद रखना है। ओके, तो द आंसर किसने दिया था बेटा इसका क्वेश्चन का, इस 48 का आंसर किसने दिया था? सर दिया। ओके, तो बेटा जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आप मुझे याद दिलाना, आपका चॉकलेट याद रहेगा मुझे। ओके, यस सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो अभी आप लोगों ने मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन किए, अभी आप लोगों ने मिसिंग टर्म के क्वेश्चन किए। एनी डाउट्स? अभी आप लोगों ने मिसिंग टर्म के क्वेश्चन किए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। सेकंड क्वेश्चन 132। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द सेकंड वन आल्सो। 132 ऑप्शन बी आता है। हाँ, इसका ऑप्शन बी आता है। देखो बेटा 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे देखिए 132 156 क्वेश्चन मार्क 210 in the next 240 272. okay, 240 272. ओके, इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन अगर इसको मैं देखूं तो ये 11 into 12 है और 13 है। एनीवन एक्सप्लेन? 11 into 12, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। 156 को लिख सकता हूँ 12 into 13, तो इसको मैं 13 into 14, इसको मैं 15 into 16 इस तरीके से लिख सकता हूँ। यस सर। इसको 16 into 17। 1 मिनट वेट 2 3 सर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 12 ऐसे, 13 का स्क्वायर माइनस 13। दैट इज अगर मैं ये 240 नहीं आता, 240 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक, क्योंकि इधर पे 11 into 12 दैट इज 133 होता है, 132, ये 156, तो ये आंसर इसका 182 आ जाएगा इसका 13 into 14। कोई और ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए? एनी ऑप्शन हियर? 12 स्क्वायर into -12। हाँ यस सर, उस वैसे आंसर आता है। 12 स्क्वायर -12, इसमें 13 स्क्वायर -13, माइनस 13, 14 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर -14, इसमें 15 स्क्वायर -15, 16 स्क्वायर -16, तो ये ऑल्सो दैट शुड बी ओके। ये भी सही हो सकता है, इसको भी कर सकते हो। जो आपके माइंड में फर्स्ट कनेक्ट करता है कि आपको फर्स्ट जो भी आपका क्रैक करता है दिमाग में, वो आपका सही ऑप्शन सर एक और है। यस 132 में 24 ऐड करके 156, फिर उसमें 26 ऐड करके 182, फिर 28 ऐड करके 210 ऐसे। हाँ, इस तरीके से भी आ सकता है।
आपको सीरीज निकालना है कि आप सीरीज कैसे निकाल सकते हो। आपको कोई पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो उससे भी कर सकते हो। देखो, मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा फायदा या सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और आंसर सारे पैटर्न से एक ही आता है। कभी कभी होता है मे बी किसी दूसरे डिफरेंट पैटर्न से अलग अलग आंसर आए, बट मोस्टली 90% सारे पैटर्न से आंसर सेम आता है। ओके, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से मैच करना है कि कौन से पैटर्न से आंसर कौन सा आ रहा है। एनी डाउट क्रिस बेटा यहाँ पे? क्रिस, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाइंड द रॉन्ग टर्म वाले पे। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया मिसिंग टर्म। नाउ फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। ओके, जो भी एग्जाम्पल होगा, लेट मी कॉल क्वेश्चन नंबर 9, 13, 21, 37, 69, 132, 261. In this series, we have to find the wrong term. आपको इस सीरीज में कोई रॉन्ग टर्म होगा, आपको वो रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस सीरीज को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप होंगे। स्टेप सेम है, आप पैटर्न निकालिए। फर्स्ट 3-4 लेटर्स या 3-4 नंबर्स के पैटर्न आपको फाइंड करने के बाद आपको वो पैटर्न में फॉलो करते जाइए, आपको नेक्स्ट रॉन्ग टर्म आपको पता लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आप लोग सॉल्व करिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, तो जिसको नहीं आता वो देखें स्क्रीन पे, जिसको आता है वो सॉल्व करें। ओके, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज सर +4 132 and the difference between these two numbers is also, that is +8. Difference between these two numbers is +16 or 32? +16. Any doubt still here? And the difference between these two numbers is +32. तो आप लोगों को बेटा देखो, इसमें पता लग गया कि 4, 8, 16, 32. So the next number should be 64 and the next number should be 128. ये होना जरूरी है कि नहीं है? Yes, sir. should be okay. तो आपको आइडिया लगा लिया। अब then the correct series of that number 9 plus 4. First number is 9, then the next number is 9 plus 4, that is 13. 9 plus 4 13, 13 plus 8 that is 21. ये भी सही है, ये 13 सही है, 21 सही है। 21 plus 16 that is 37. 37 also correct. 37 plus 32 that is 69. 69 is also correct. 69 plus 64 that is 132 and the 69 plus 64 that is equal to 133. So the answer should be 133. But यहाँ पे क्या दिया 132. So the wrong term of that series that is equal to 132. 132. So the correct option क्या हो जाएगा 132. Okay. Clear हो बेटा? Any doubts still here? Any doubts बेटा? No, sir. ओके, नो सर तो नेक्स्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। ओके, अब इस तरीके से कोई सीरीज आ जाएगा, आप उसमें रॉन्ग टर्म निकाल लोगे। कुछ फर्स्ट इससे डिफरेंस है, जो मैंने ये टर्म बताए आप लोगों को, ये सीरीज बताई है, तो इससे कुछ डिफरेंस है क्या? पैटर्न मुझे इस सीरीज में भी फाइंड करना है, जो 14, 15 और 12 जो भी है, एंड द पैटर्न मुझे इस सीरीज में भी फाइंड करना है, जो ये है। एंड दोनों पैटर्न को कंपेयर करना है, लास्ट में एक लाइन और बढ़ जाता है और उसमें जो करेक्ट नंबर है वो करेक्ट नंबर हम लोग को फाइंड कर लेना है। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो द नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज और
number that is called series of letters. ओके, नंबर वन, बेटा जो सीरीज ऑफ लेटर्स होते हैं, इस लेटर्स में क्या होता है? आपको लेटर्स तो आप लोग को पता है, लेटर्स कौन कौन से लेटर्स होते हैं? दैट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एच, वाई, जेड। ओके बेटा, इसको हम कुछ नंबरिंग से याद करते हैं, नंबरिंग देते हैं इसको। फर्स्ट ए को 1 दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ओके, जो ये सीरीज में नंबर है इसको बोलते हैं इन ऑर्डर नंबर्स। ओके, मतलब ए को मैंने 1 नंबर दिया, इसको बोलते हैं इन ऑर्डर नंबर और ऑर्डर नंबर। ओके, इफ अगर मैं इसको क्या बोलूं, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर कर दूं, देन रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा? दैट जेड इज इक्वल टू 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ओके, दैट इज पिंक में इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। ओके, एंड ग्रीन में जो है इसको बोलते हैं इन ऑर्डर। ओके, इसको रिवर्स ऑर्डर, इसको इन ऑर्डर बोलते हैं। ओके बेटा, दोनों को याद रखना, रिवर्स ऑर्डर एंड इन ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 27। दैट इज इन ऑर्डर नंबर प्लस रिवर्स ऑर्डर नंबर दैट इज इक्वल टू 27। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, देन आपको ये दोनों नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, ABCD 1 2 3 आप याद कर लोगे। ओके, सपोज मुझे रिवर्स ऑर्डर नंबर निकालना है, रिवर्स ऑर्डर नंबर्स ऑफ T। ओके, इफ वी हैव टू फाइंड द रिवर्स ऑर्डर नंबर ऑफ T। ओके, तो इन ऑर्डर नंबर तो हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। इन ऑर्डर नंबर प्लस रिवर्स ऑर्डर नंबर दैट इज इक्वल टू 27। इन ऑर्डर नंबर मेरे पास क्या है? T का 16 है, तो 16 प्लस रिवर्स ऑर्डर दैट इज 27। तो इसको मैं रिवर्स ऑर्डर दैट इज 27 माइनस 16 दैट इज 11। ओके, तो ये 11 आ जाएगा। अगर आप रिमेंबर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर याद नहीं है तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, एनी डाउट्स बेटा टिल हियर? एनीवन, एनी डाउट्स? नहीं No, सर। sir. Okay, so in alphabet series there is a two types of problems. Okay, patterns of alphabet series. So variation based on, और यू कैन कॉल दो तरीके से पैटर्न्स होते हैं। नंबर वन इज
position of letter. Number second is the difference between letter. Okay, दो तरीके से पैटर्न होते हैं. Okay, for example, let me call example numbers here. Examples numbers is examples number, that is example number 9. Let me call example number 10. Okay, example number 10. Okay, then the B, D, G, I, question mark, N. Find the missing numbers or missing letters of that series. Okay, तो बेटा इसमें क्या, D को मैं क्या से लिख सकता हूँ? B को मैं 2 से लिख सकता हूँ. D को मैं क्या लिख सकता हूँ? D को A B C D 4 लिख सकता हूँ. एंड G को मैं क्या लिख सकता हूँ? G को 7 लिख सकता हूँ. G को 7 लिख सकता हूँ. I को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो, I को मैं 9 लिख सकता हूँ. I को 9 लिखा. ये मिसिंग है. N को मैं क्या लिख सकता हूँ? N को 14 लिख सकता हूँ. ओके, Okay. N को मैं 14 लिख सकता हूँ. तो बेटा जो ये सीरीज बन गई, दैट इज नंबर सीरीज बन गई है. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस नंबर सीरीज में. ओके, द डिफरेंस बिटवीन दीस टू लेटर्स इज K. h plus 2 and the difference between these two is plus 3. Plus 2 plus Difference 3. between these two is plus 2. +2 Difference. So the series will be following 2 plus 2 plus 3 +3 plus +2 2 plus 3 plus 2 इस तरीके से फॉलो हो रही है. तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो +2 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा. 11 और 12 2 3 9 प्लस 3 हो जाएगा. ओके, यहाँ पर 12 हो जाएगा. Any doubts बेटा? And the next series, next number is +2, so ये 14 हो गया. Okay, so the answer should be L. The 12 number किसका है? L का. Any doubts in this answer? No, sir. Very good, बहुत अच्छे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. क्वेश्चन नंबर A, Y, D, W, G, U, J and question mark. Okay, solve this question. सर लास्ट का एक और फर्स्ट का एक लिया है. A Y लास्ट का G V. Answer is S. लास्ट का एक और बेटा आवाज नहीं आ रहा आपका. एस किसी ने बोला आंसर? एस किसने बोला? Purva. पूर्वा. ओके, किसको समझ नहीं आया बेटा? लास्ट क्या बोल रहे थे आप लोग? गौतम, आंसर इज यस. एस आंसर इज करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सीरीज से आप लोग को आइडिया, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि देखिए क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया लगना चाहिए. अगर देखने से क्वेश्चन आइडिया लग रहा है फर्स्ट का एक और डायरेक्शन, देन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. ओके, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे वाई. तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये स्टार्टिंग का लेटर है, ये एंड का लेटर है. ये स्टार्टिंग का लेटर है, ये भी स्टार्टिंग का लेटर है, ये एंड का लेटर है. ये भी स्टार्टिंग का लेटर है, ये सर end का मैंने भी ऊपर ये भी स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे एंड का लेटर आएगा. ओके, तो अब आप लोगों को आइडिया लग गया कि इसमें दो सीरीज फॉलो हो रही है. एक एंड वाली सीरीज है एंड एक स्टार्टिंग वाली सीरीज है.
तो स्टार्टिंग वाली सीरीज को मैं इस तरीके से लिखूंगा, इफ मैं स्टार्टिंग वाली सीरीज को लिखूं ए बी जी जे, ओके, एंड द एंडिंग वाली सीरीज को लिखूं मैं वाई डब्ल्यू यू एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इस सीरीज को लिख लिया। अब मैं यहाँ पे नंबर प्लेस कर दूं उसके नीचे पे। अगर मैं इसमें नंबर प्लेस कर दूं, ओके, ए यहाँ पे 1 हो गया, ए बी सी डी डी यहाँ पे 4 हो गया, ओके। अगर मैं देखो जिस सीरीज में इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, तो इसमें सोचना ही नहीं है मुझे, ओके। सोचना थिंक मुझे इसमें लगाना, अपना दिमाग इसमें लगाना। वाई का कितना नंबर है, वाई का नंबर एनीवन? 25 ना? 25, 25, 12, डब्ल्यू का 25, 23, 23, यू का 21, 21. 21. So you clearly see the difference between is -2, and the difference between these two is also -2. So the difference between this and the next number should be कितना होगा? -2 -2. होगा। So the next letter should be 19 नंबर का होगा, 19 नंबर का, Yes, sir. 19 नंबर का। तो 19 पे कौन सा लेटर आता है? S. एस आता है। तो एस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है? no sir, क्रिस, No, sir. क्रिस एनी डाउट? no, Okay. So solve the next question also. Question number 12. H, L, P, T, X. Okay. If you solve this question, सर वो अल्फाबेट दिखाइए, कौन सा अल्फाबेट? आपने नंबर डालकर लिखा था। वो बेटा आपको लिखना पड़ेगा ना। आप लिख ये वाला ना, सर बी, हाँ, ये आप कॉपी कर लीजिए आप अपने बी, नोट्स में। आप अपने नोट्स में कॉपी करिए, रफ कॉपी में कहीं पे कॉपी करिए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं मैंने अपने मन से लिखा है, सब आपको आता है ऑलरेडी। मैं आपको बस याद करा रहा हूँ कि ए को मैंने 1 लिया, बी को 2 लिया, सी को 3 लिया। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये चीज आपको आती है। Sir, answer C. सर बी आता है, बी आता है, Sir, बी आता है, B आता है. बी, बी, दैट इज, अभी क्लियर हो जाएगा। दैट इज 6, दैट इज 12, +4, दैट इज 16, +4, दैट इज 16, 20, +4, 18, दैट इज 24। तो द नेक्स्ट नंबर इज 28। Sir, H का 8 आता है. yes sir, 8 आता है. 8 होगा, ओके 8 होगा, 8 होगा, ओके ओके। गौतम, द आंसर इज करेक्ट। सो 28 आया। 28 द अल्फाबेट, यू नो अल्फाबेट A to Z, दैट इज 1 to 26 होगा। देन रिसाइकिल होने लगता है, रिपीट होने लगता है। अगर 27 कहीं पे नंबर आता है दैट इज A, 28 नंबर आता है दैट इज B, 29 आता है दैट इज C, मतलब रिपीट होने लगता है, ओके। So 28 letter is, answer should be B. Okay, clear everyone? Yes sir, Please clear? Yes. Okay. In the solve Yes, the sir. next question, A, G, L, R, W, C, H, N, and question mark. P, G, L, C, H, L, P, G, L,
सर SY TZ. First SY TZ. Okay. Next. Sir, SY. Okay. SY. इसका क्वेश्चन आ गया और कॉन्फिडेंस है कि वो SY में सही है या TZ में सही है, देन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो. ओके. For your information, SY is the correct answer. Okay. Very Okay. good, Gautam. SY is the correct answer. थैंक यू सर. SY is the correct answer. Everyone clarify. आप अपना अपना सही कर लीजिए. SY is the correct answer. किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है कि सर ये डाउट है, मुझे समझ नहीं आया. I can explain them. Okay. So next का आंसर PSU आता है. Next answer P. 14. PSU. PSU. Okay. थोड़ा सा दिमाग लगेगा. सर PMR आता है सेकंड का. PMR. Okay. Sir, second का PMR. PMR. Okay. Then the correct answer is PMR. If anyone have any doubts, I can explain. अगर डाउट नहीं है, then move forward. Okay. Answer is PMR. Very good, Gautam. Correct answer is PMR. PSU जिसका आया अगर समझ नहीं आता, I can explain. Okay. If you are not able to understand the question, I can explain. जिसका आंसर आ गया PMR, then solve the next question. Question number 16. That is 1Br, 2EO, 6HL, 15Ki, 15Ki. That is the mixing of both alphabet and numbers. Okay. To solve the question number 16, if you have solved the question number 14, 15. Any doubts? Sir, 15th one EJT. 15th one, EJT. EJT. Okay. EJT. Anyone? सर मुझे तो समझ में नहीं आया. Okay, समझ नहीं आया. Question number, I can explain the all of them. First आप लोग सर आप बताएं सारे मुझे. क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बता दीजिए. हाँ मैं सारे का क्वेश्चन. 13 से. वेरी गुड बेटा. 13 से. Sir, EIT. हाँ EIT आता है. Sorry.
Okay, okay, EIB. EIB is correct answer. Okay. So let me explain the all of them. मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट देखिए आप लोग AGLRWC इस क्वेश्चन को देखिए. ओके, इस क्वेश्चन को देखिए. देखिए A इज द वन एंड G इज. फर्स्ट देखिए आप सभी सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर देखिए. ALWH इसको देखिए. A1 L is 12, W is 23, H कितना है? 8 है. ओके, सो एंड द सेकंड G देखिए. अब G देखिए, G में क्या है? G is 7, that is 18, C is 3, H in 14. ओके, तो अभी इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेटर्स इज ALWH. Okay, the difference between these two letters. Okay, first explain that these two letters. A and L में डिफरेंस कितना है? 11 का. क्लियर? A and L में डिफरेंस कितना है? 11 का डिफरेंस है ना? Yes, sir. ओके, एंड L और W में डिफरेंस कितना है? 11. 11 का डिफरेंस है. W एंड H में कितने का है डिफरेंस? 11. 11 का डिफरेंस है. तो द नेक्स्ट वर्ड जो आएगा उसमें भी 11 का डिफरेंस होगा. क्लियर? तो द Yes. फर्स्ट लेटर ऑफ दैट, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? H का. H में 11 का डिफरेंस करेंगे. इसमें 11 करेंगे. 8 plus 11 that is equal to 19. So the first letter of that series equal to S हो गया. मेरे हिसाब से आप लोगों ने कुछ और सोचा होगा, बट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ओके, जो आप लोगों ने सोचा होगा वो कॉन्सेप्ट भी सही है अगर आंसर सही मैच कर रहा है तो. ओके, S हो गया. नाउ अब देखो जो डिफरेंस बिटवीन G एंड R, इसमें डिफरेंस देखिए. इसमें डिफरेंस कितना है? 11 का. क्लियर? Yes, sir. ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन R एंड C, इसमें कितने का डिफरेंस है? आई थिंक कुछ रॉन्ग हो गया. सर या फिर 1 plus 6 7, 12 plus 6 18 और 23 plus 6 29, so फिर वो 3 आएगा. यहाँ पे भी डिफरेंस 11 होता है. देखो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको. ओके, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं. एक क्वेश्चन मैंने तरीके से सॉल्व हो सकता है. उसको ऐसा नहीं कि आप लोग जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, सर ने जो बताया वही सही है. उसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसको किसी ने लगाया. ए का नंबर कितना है? A1 है, ये 12 है, G7. 7 है. ओके, L है 12 है, 23 है, 8 है. ओके, R 18 है, 18. ये C3. 3 है, N 14. And 14. 14 है. ओके, 1 plus 6 कितना है बेटा? 1 plus 6 that is equal to 7. 7. यहाँ पे 7 हो गया. इसको 12 plus 6 that is 18 हो गया. 18 हो गया ना? क्लियर ना? 23 plus 6 that is 29, that means 26 plus 3, तो ये 3 हो गया यहाँ पे.
क्लियर? क्लियर हुआ ना? सर वो थर्ड वाला समझ नहीं आया। थर्ड वाला देखो, इसमें क्या है बेटा, 26 23 प्लस 6 कितना हुआ? 29। 29। लेटर में कितना, अपने जो ABCD अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितने लेटर होते हैं? हाँ हाँ सर समझ आया। 26 होते हैं ना? हाँ तो अब समझ आया 3 कहाँ से आया? हाँ सर। वेरी गुड। द नेक्स्ट विल बी 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14। हो गया ये? क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके, तो द नेक्स्ट आंसर जो होगा वो भी, इसमें भी 6 का डिफरेंस होगा। अभी हमको जो फाइंड करना है वो एस फाइंड कर, क्या 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 किसी डाउट, क्या बोले? नहीं सर, कुछ हम्म, सर नथिंग। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा बेटा आपका। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ, क्रिस यादव, आपको कुछ समझ में, नो डाउट? ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। HEJJGLLINNKP। तो देखिए, फर्स्ट लेटर जो है HEJ, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ग्रुप डिफर बाय 2 लेटर्स। सर 13 का लास्ट फिर से समझाइए ना। 13 का लास्ट HN है, H प्लस 8 प्लस 6 14 हो गया। ओके, देखिए जो फर्स्ट है 1 है ए, अभी यहाँ पे देख लीजिए ALWH, ये समझ में आया? 1 7 12 18 30 23 3 8 40, ये समझ में आया? बेटा प्लीज रिस्पॉन्स, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं यस दोगे सर। तो मैं, आया ओके सर, समझ में आया। ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 8 है। तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड एल में डिफरेंस कितना है? 11 का। 11 एल एंड डब्ल्यू में कितने का डिफरेंस है? 11 11 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 11 11 का डिफरेंस है। तो द नेक्स्ट नंबर कितने का आएगा? 11 का डिफरेंस आएगा। तो एच में 8 में 11 ऐड करने से कितना आता है? 19 आता है। हाँ 19 आता है, तो यहाँ पे कितना होगा? एस हो जाएगा। हाँ एस 19 हो गया। अभी 19 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो गया? 25। तो 25 नंबर किसका होता है? वाई का ओ होता है, तो एस वाई हो गया। हाँ क्लियर? Yes, sir. यस एनी डाउट? No, sir. ओके, तो द आंसर देखो, एच, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, HEJJGL, इस क्वेश्चन में देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ग्रुप डिफर बाय द 2 लेटर्स। ओके, एच, एच कितना नंबर है? एच का नंबर, एच दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज 2। एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों के पास? यस सर। ओके, एच के बाद आई आता है, तो मतलब एक डिफरेंस छोड़ करके नेक्स्ट नंबर लिया फर्स्ट लेटर में। ओके, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। डिफरेंस बिटवीन वैसे 2 होगा यहाँ पे। एच का नंबर कितना होता है? जे का नंबर कितना है बताओ मेरे को? 10। जे का नंबर यहाँ पे 10 है, और इसका नंबर कितना है? 8 है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 का 2। डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। डिफरेंस इज 2। ओके, देन द सेकंड ई में देखिए, ई है एंड जी है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो यहाँ पे 1। भी 2 का डिफरेंस है। हाँ 2 2। ओके, एंड जे, जे के बाद के के बाद एल आता है, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। यस सर। तो
सारे नंबर्स में देखिए, अभी इस सीरीज को कंपेयर किया काय? मैंने इससे। अभी जाता हूँ। इसको देखिए, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर देखिए, इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर, इसका थर्ड लेटर, इसका थर्ड लेटर देखिए, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यस सर। तो थर्ड में भी 2 का डिफरेंस है। सो द नेक्स्ट नंबर आएगा, इसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। एन के बाद क्या आता है? एम, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, द पी इज द राइट ऑप्शन। के बाद क्या आता है? के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम इज द राइट। पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आंसर इज पी एम आर। एनी डाउट बेटा? नो No. सर। No, sir. क्रिस, एनी डाउट? ओके, सो द इन दिस ऑप्शन YALTCP, ये किसी ने सॉल्व किया? हाँ सर, उसका आंसर EIB आता है। IB. First letter of each group differ by the five letters in backward direction. समझ में आया बेटा? यस सर। Y का नंबर कितना है? Y इसमें देखिए, Y एंड T में डिफरेंस कितना है? -5। -5 का डिफरेंस है। यस सर। ओके, and the second letter of each group differ by 2 letter in forward +2। direction. A और C में डिफरेंस कितना है? +2। and the third letter of each group differ by the 4 letter in the forward direction. +4। L और T में +4 का डिफरेंस है। सेम -5 +4 +2 का डिफरेंस सेम यहाँ फॉलो हो रहा है, सेम यहाँ फॉलो हो रहा है, तो सेम यहाँ पर भी फॉलो होगा नेक्स्ट में। तो आप इसका आंसर निकालिए, बताइए कितना आंसर आएगा? EIB। EIB। एनी डाउट्स बेटा? I am personally calling everyone. No, Diya sir. Kotak, any doubts? नो सर। Yes, Gautam, No. Chris, Purva, No, sir. No, sir. okay. So, now next the question number 16. The first number in each term is follow the sequence of +1 square, +2 square, +3 square, +4 square. फॉलो हो रहा है? आपको आइडिया कैसे फॉलो हो रहा है? फर्स्ट नंबर अगर मैं इसको बोलूं, फर्स्ट नंबर, किसी को ये सीरीज समझ में आया? 1 2 6 15 सीरीज समझ में आया? No, sir. किसी को क्लियर नहीं हुआ? ओके, मेरे को नहीं समझा। मैं समझा रहा हूँ। ओके बेटा, अगर मैं 1 + 1 स्क्वायर करूं, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 2. 2 + 2 स्क्वायर करूं, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 6। 6 हुआ। 6 हुआ। अगर Yes, मैं sir. बोलूं 6 + 3 स्क्वायर करूं, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 15। 15 हुआ। फिर 15 + 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? हाउ मच? 31. 31। तो 31। तो द नेक्स्ट नंबर आप लोगों ने तो पता कर लिया कि 31 आएगा। Sir, उसका आंसर 31 NF है. हाँ, 31 NF है आंसर। 31 NF सही है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो 31 कैसे आया। 31 NF करेक्ट आंसर, जिसका आ गया 31 NF करेक्ट आंसर। ओके, तो 31 आया, समझ में आया आपको? 31 Yes, सीरीज sir. 1 + 1 स्क्वायर, ये 1 + 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2,
this 2 plus 2 square that is equal to 6 plus this 6 plus 3 square that is equal to 15 plus this 15 plus 4 square that is equal to 31. Okay, now the B E H K, B and E में difference कितना है? The second letter of each group differ by the difference of 3. 3 in the forward direction. Okay, Yes, B के sir. बाद C D E, so the difference between B and E is plus 3, and the third letter of each group differ by 3 letters in backward direction, -3. -3. So similarly in K में क्या होगा? +3, and I में क्या होगा? -3. -3. K का +3 N हो गया, I का -3 F हो गया. So the answer is 31 NF. 31 NF is the correct answer. Everyone is clear? किसी को कोई डाउट है? No, sir. प्लीज X नहीं आएगा, F आएगा in backward direction. Okay. Now अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा. देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए जो मैंने आज पढ़ाया है. Yes, sir. समझ आया. एक एक Yes, क्वेश्चन sir. आपको समझ में आया ना? मैं एक क्वेश्चन और Yes. दे रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो देन मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करिए. क्वेश्चन नंबर है DOU PPV FQW GRX HTY ITZ. इसमें क्या है? फाइंड द रॉन्ग टर्म. ओके, रॉन्ग टर्म निकालना है. सीरीज होगा इसमें, रॉन्ग टर्म निकाल के बताओ मुझे. अगर आपने निकाल लिया देन आपका सही ऑप्शन सही है. Yes, sir. HTY. HTY कैसे निकाला? सर वो सीक्वेंस में DEFGHIOPR. यस नहीं मिसिंग है. Yes, sir. वेरी गुड बेटा. सो द आंसर इज HTY. ओके, HTY. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो. D4V ओके G10T J20R M43P P90N. फाइंड द रॉन्ग टर्म. रॉन्ग टर्म इसमें भी आपको निकालना. ओके, HTY. So J20R. J20R. ओके, कैसे आया बेटा बताओ प्लीज एक्सप्लेन. P90N. P90N. J20R. एक्सप्लेन करिए आप सब लोग कैसे आया. सर फर्स्ट सबके फर्स्ट लेटर में डिफरेंस 3 का है, और मतलब लास्ट +3 होता है. और वो J20R में J मतलब वो फिट नहीं होता उसमें. Okay. The difference between first letter of every word is क्या है इसमें? Difference is +3. and last +3. letter. सब में difference is +3 है in forward direction. The difference is +3 है. किसी को कोई डाउट है इसमें?
So the first letter of every term is correct. Okay. Now we can say the D is correct, G is correct, J is correct, M is correct, P is correct, and sorry. Okay, ये correct option है. Okay. Now the third letter of every term is moved 2 steps backward. T के बाद क्या होता है? देखो N अगर लास्ट देखो T के बाद 2 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आएगा? T आता है. ओके. V में अगर मैं 2 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा तो T आता है. T में 2 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या तो Q आता है. Q में 2 स्टेप बैकवर्ड तो N आता है. N में 2 स्टेप बैकवर्ड तो T आता है. ओके. नाउ देखिए अगर V में 2 स्टेप बैकवर्ड जाता हूँ तो क्या आता है? T आता है. T में 2 स्टेप बैकवर्ड जाने से क्या ऑप्शन आता है? Q. अगर मैं T आ गया 2 स्टेप बैकवर्ड 1 Q. 2 R आएगा ना बेटा? हाँ, हाँ आ रहा है. R आएगा. R में 2 स्टेप बैकवर्ड तो P आएगा. ये R भी सही है, ये P भी सही है, ये N भी सही है. तो जो अल्फाबेट सीरीज ऑफ दैट सीरीज जो अल्फाबेट नंबर है वो तो सही है अल्फाबेट. तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो 4 10 20 43 90 में है. एवरीवन यहाँ तक आपको समझ में आया? लिसन केयरफुली. यहाँ तक समझ में आया आपको? yes sir. ओके वेरी गुड. तो अभी आपको इस सीरीज में आपको रॉन्ग टर्म निकालना है. इस सीरीज में आपको रॉन्ग टर्म निकालना है. इस सीरीज में आप रॉन्ग टर्म निकालिए. सीरीज कैसे फॉलो हो रही है पहले ये आप देखिए. तो ये सीरीज कैसे फॉलो हो रही है इसमें मैं क्या देख सकता हूँ? लेट मी एक्सप्लेन. इफ 4 into 2 plus 2 plus plus हाँ, 2 two. 4 into 2 plus 2 करने से कितना आता है? 10 10. 10 आ गया. ओके. Then 10 into 2 plus 3 that is not following. Okay, series Sir, follow गलत. नहीं हो रही है. सीरीज कैसे फॉलो हो रही है आप लोग निकालिए. इफ मैं बोलूं 4 into 2 plus 1 that is equal to 9. 9 into 2 plus 2 that is equal to 20. And 20 into 2 plus 3 that is equal to 43. And 43 into 2 plus 4 that is equal to 90. तो सीरीज फॉलो हो रही है. देखो 90 90 43 43 20 20 ये 4 है 4 हुआ. ये 9 ऑप्शन नहीं आ रहा. ये 10 करेक्ट ऑप्शन नहीं है. इफ वी कैन राइट 9 in place of 10 then the series will be the correct option. Okay, if we can write the 9 in place of 10, so the correct term of that series that is G 9T. तो ये ऑप्शन है. ये ऑप्शन होना चाहिए. इसकी जगह पे आपको क्या होना चाहिए? G9T ऑप्शन होना चाहिए. सो द रॉन्ग टर्म ऑफ दैट सीरीज इज G10T. समझ में आया? Yes sir. कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने लगाया यहाँ पे कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो या समझ नहीं आया हो. सिंपल सा चीज है. ओके Yes sir. Yes फॉर sir. टुडे आज के लिए इतना ठीक है. मैं आप लोगों को सीट भेजूंगा. आप उस सीट को सॉल्व करके मुझे आंसर भेजिए. ओके. ऑप्शन आंसर तो है ही उसमें. आंसर भी दिए हैं. आप उसमें से कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए. अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपको आ गई है सीट. ओके. Yes sir. तो एनी डाउट टिल टुडे? No sir. कोई डाउट आपको? No sir. क्रिस कोई डाउट? no ओके वेरी गुड.
So shall we stop today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you very much. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Thank you, sir.